Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start chapter 4, General Science 9th class. This chapter is about human health. In this chapter, different things that we are to study. I shall give a brief outline of these things. Introduction of important components of our diet will be there, like proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, and water. Components of our diet. Diet. What's diet? Diet means all those eatables that we frequently eat, that we habitually eat. खाने पीने की वो चीज़ें जो हम अपनी खुराक में हैबिचुअली और फ्रीक्वेंटली जो है यूज़ करते हैं, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, minerals, water. These are the components of our diet. These things will be discussed. Then we are to determine food and energy needs with respect to age, sex, climate, and physiological conditions of the body. That how can we determine what type of food and what are the energy needs for different cases. For example, different age groups, persons of different ages, sex mean male or female, climate, that's the weather conditions of different places, and physiological conditions of the body mean working of the body. For example, someone is there who works for extra times. Someone is there which is not habitual of doing any work. कोई बंदा ज़्यादा काम करने की हैबिट रखता है, तो लाज़िम बात है उसको ज़्यादा खुराक चाहिए, उसकी एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है. और अगर कोई बंदा काम थोड़ा करता है तो उसकी एनर्जी की डिमांड भी कम होगी. ये डिफरेंट केसेस हैं that we are to discuss. Importance of balanced diet. Balanced diet क्या होती है? Diet that consists of all the nutrients required by our body in proper proportion. वो डाइट बैलेंस्ड होती है जिसमें कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद हों. This balanced diet will be discussed for the people which belong to different age groups. Then definition and explanation of nervous system will be there, especially with respect to endocrine system. Endocrine glands will be discussed. Endocrine means ductless glands. Those glands that don't have ducts for the transport of their hormones. ये हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, इसकी बात करेंगे. And brief introduction of various stages. So various stages and related problems of human life will be there. Human life के different जो stages हैं, शीर खारगी का जैसे पीरियड है, बचपन का पीरियड है, लड़कपन का पीरियड है, यूथ का पीरियड है, ओल्ड एज है. These are different stages. At various stages, what the problems are there which are caused, which human beings face. These things we are to discuss. Then importance of exercise in human life, it will also be discussed. That what's the role of exercise in maintaining our health. हम अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज क्यों करते हैं, एक्सरसाइज का होना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें डिस्कस होंगी. एंड यूज़ ऑफ फर्स्ट एड. First aid is the immediate, very fast and immediate assistance given to a patient or any person suffering from a certain disease
or an injury. It may be an accidental case or maybe the case of any disease. It will be discussed here. And this first aid is mainly done to avoid or to prevent a condition from worsening. For example, कोई accidental case था तो ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट्स की, ब्लीडिंग में लीड टू डेथ। तो ऐसे केसेस में फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है पेशेंट्स को, उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड करने से पहले। इट्स मेंशन्ड हियर कि हेल्थ इज वेल्थ, कि जो सेहत है ये एक बहुत बड़ी दौलत है। दैट्स अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, बड़ा तोहफा है। ह्यूमन हेल्थ डिपेंड किस पे करती है? नॉट ओनली ऑन फूड, ना सिर्फ खुराक के ऊपर डिपेंड करती है, बल्कि इस फैक्ट पे भी डिपेंड करती है कि वेदर अ मैन इज एक्वाइंटेड ऑफ ऑल द फिनोमिना अकरिंग इन इट्स बॉडी। इंसान अपनी बॉडी में होने वाले तमाम जो प्रोसेसेस हैं, क्या उनसे अवेयर है, उनसे वाकिफ है, आगाह है। एक्वाइंटेड ऑफ मीन अवेयर ऑफ, कि वो जानता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। वो खुराक खाता है तो उसके बाद वो खुराक जो है वो जिस्म के इस्तेमाल के काबिल कैसे बनती है, या वो इन सारी चीज़ों को जानता है। तो कहा कि ही शुड बी एक्वाइंटेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ही शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, कि उसको पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो कहा कि ओनली आफ्टर हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स, कि ये सारी जो बातें हैं इनका कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो, अच्छी खासी सूझबूझ अगर हो, तो तभी जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है इन मेंटेनिंग हिज हेल्थ। इंसान अपनी सेहत को तभी मेंटेन रख सकता है। तो कहा कि इस चैप्टर के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ डाइट टू मेंटेन अवर हेल्थ। एक तो ये चीज़ डिस्कस होगी, और इसके साथ साथ जो है कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं ये भी डिस्कस होंगे, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो हैं जो इंटरनली जो है हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। इसमें हम हमारी बॉडी में होने वाले सारे प्रोसेसेस को ले सकते हैं, डाइजेशन वगैरह है, अब्जॉर्प्शन है, असिमिलेशन एक्स्ट्रा, दीज थिंग्स में भी देर। और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर्स में हम इंटरनल मोटिवेशंस वैसे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स को हम लें कि स्टूडेंट्स को जो है वो खुद ही काम करने का बहुत शौक होता है, उनको कहना नहीं पड़ता और खुद ही जो है वो लगाव होता है उन्हें पढ़ने में, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से हैं? ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल इसमें आ सकता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इसमें। फॉर एग्जांपल कोई आदमी जो है वो शोहरत की खातिर को काम कर रहा है, अपनी तारीफ की खातिर काम करता है, या वो अपने खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसी मैनेज करता है कि दूसरे जब देखें तो वो उसको अच्छा समझें, उसकी तारीफ करें। तो ये सारी चीज़ें एक्सटेंसिक में आती हैं। वो होटलिंग करता है, वो किस किस्म के जो है वो होटल्स विजिट करता है, वो अपने लिबास का कैसे जो वो चुनाव करता है, कौन सी शॉप्स से जो है वो अपने लिबास रहता है कि लोग ये ना समझें कि ये किसी आम दुकान से शॉपिंग करता है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ये एक्सटेंसिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती हैं, और इंसान फिर इन सारे चैलेंजेस को मीट कैसे करता है, इन चैलेंजेस के साथ निपटता कैसे, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक इज देयर फूड एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स। कहा कि फूड इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसानी जिंदगी की जो बुनियादी जरूरत है वो खुराक है।
साइंटिफिकली स्पीकिंग कहा कि फूड जो है ये कोई भी वो चीज़ जो कि आफ्टर डाइजेशन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, दैट मे बी यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज बाय आवर बॉडी एंड दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट इज फूड। कहा कि खुराक हम हर उस चीज को कहेंगे जो डाइजेशन के बाद हमारे जिस्म के की जो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करे और जिस्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर जब वो हेल्प करेगी, यूज़ हो, हम उसको खुराक कहते हैं। अब फूड कंपोनेंट्स हमने चूंकि मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट वाटर आ रहा है। वाटर का कहा कि इट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, इंतहाई ज़रूरी है। पानी जो है बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। मैंने का बताया कि वो सरवाइव कर सकता है विदाउट फूड फॉर एटलीस्ट अ मंथ, कि बगैर खुराक के तो एक माह तक भी इंसान जो है वो जिंदा रह सकता है, बट जस्ट अ फ्यू डेज विदाउट वाटर, लेकिन पानी के बगैर सिर्फ चंद दिन ही गुजार सकता है। बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी का। तकरीबन 60% ऑफ एडल्ट बॉडी वेट जो है ये पानी है, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो वाटर परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल, इट हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में इसका रोल है। मसलन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इंक्रीज होने लगता है तो स्वेटिंग का प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी के जो नेचुरल मैकेनिज्म्स हैं, अब वो स्वेटिंग के दौरान क्या होता है, पसीना निकलता है। स्वेट ग्लैंड स्किन में जो है वो पसीना प्रोड्यूस करते हैं, उस पसीना में पानी होता है। वो जब बॉडी सरफेस पे आता है तो इवेपोरेट होता है, और पानी इवेपोरेशन के दौरान बॉडी की हीट को ऑब्जॉर्व करके इवेपोरेट होता है, तो हम कूलिंग फील करते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में वाटर का रोल है। इसके अलावा यूरिनेशन के जरिए पानी का खारिज होना, से भी हीट जो है वो खारिज होती है। और इवन रेस्पिरेशन के दौरान जब एक्सेलेशन में हम हवा बाहर खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, तो उसके दौरान भी पानी जो है वो बाहर खारिज होता है। वाटर के वेपर्स होते हैं तो हीट को अब्जॉर्ब करके वो भी रिलीज होते हैं। इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऐसे रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि पानी की मौजूदगी में हो सकते हैं। अगर पानी ना हो तो वो रिएक्शंस नहीं हो सकते, तो एक मीडियम का काम करता है। इसके अलावा बताया कि ये हेल्प करता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इन द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इंट्रासेलुलर मीन विद इन द सेल्स। सेल्स के अंदर होने वाले मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं, और ये उन रिएक्शंस के होने में, उन प्रोसेसेस के होने में जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट बताया कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को टू द सेल एंड हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स जो है मसलन डाइजेस्टिव सिस्टम से जो खुराक है वो ब्लड के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होती है लिवर को, फिर लिवर से जो है वो आगे पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल्स तक जा रहे हैं। इसके अलावा सेल्स के अंदर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है और वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, इनकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साथ कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। वो जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो अगेन वाटर के जरिए ही बॉडी के उन पार्ट्स तक पहुंचते हैं जिनके जरिए वो रिमूव हो सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स तक पहुंचती है, अमोनिया वगैरह जो है वो यूरिया में, लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, तो यूरिया किडनीज जो है वो सेपरेट करते हैं। तो ब्लड ही है जो कि इन सारे सब्सटेंसेस को रेलेवेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है ताकि ये सब्सटेंसेस जो हैं ये बॉडी से रिमूव हो सकें। बिकॉज accumulation of these waste substances it proves toxic for the body if they stay in the body for longer durations. नेक्स्ट बताएं जॉइंट्स के अंदर और बाकी जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। लुब्रिकेंट मीन substance that makes a surface friction free।
लुब्रिकेंट उस चीज को कहते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स के अंदर क्या होता है कि बोन्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है जॉइंट के लेवल पे, तो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन जो है उसको खत्म करना, ये लुब्रिकेशन है। फ्लूइड सा जो होता है जॉइंट के अंदर, तो उसमें वाटर है जो मेनली लुब्रिकेशन कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट्स। बताया कि ये abundantly occur करते हैं all living organisms and in almost all cells. Cellulose of wood, cotton, paper, starch, which are present in muscles of animals, lactose of milk, sucrose of cane. These are all examples of carbohydrates. ये मुख्तलिफ सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट्स के दिए गए। सेलुलोज ऑफ वुड जो है, जो लकड़ी है, ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह कॉटन है, पेपर है, स्टार्च वगैरह जो एनिमल के मसल्स में पाए जाते हैं, या मिल्क में लैक्टोज शुगर पाई जाती है। सुक्रोज ऑफ केन, गन्ने के अंदर जो है सुक्रोज पाई जाती है, तो ये सुक्रोज जो है ये डाइसैकेराइड है। इसी तरह लैक्टोज भी डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में जो दो सिंपल शुगर से मिलकर बनने वाली शुगर्स हैं, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बताया कि इम्पोर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। स्ट्रक्चरल रोल मीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बनने में इस्तेमाल होते हैं, और फंक्शनल रोल में ये है कि इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज में यूज होती है। कहा कि देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल, कि सेल्स की जो एनर्जी की जरूरियात हैं वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से जब वो मीट होती हैं। वीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन, पोटैटो एंड बीट, दीज आर मेजर सोर्सेस। वीट गंदम है, राइस चावल, पल्सेस दालें, शुगर केन गन्ना, पोटैटो आलू है, बीट चिकंदर होता है। ये मेजर सोर्सेज बताए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। नेक्स्ट फैट्स। लिपिड्स जो हैं दे आर क्लासिफाइड एज फैट्स एंड ऑयल्स। के लिपिड्स के दो ग्रुप्स हैं, एक फैट्स और दूसरा ऑयल्स। फैट्स जो हैं ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि ऑयल्स जो हैं ये उन लिपिड्स को कहा जाता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। एक ये फर्क दोनों में हुआ। दूसरी बात, फैट्स जो हैं ये एनिमल्स से मिलते हैं, जबकि ऑयल्स प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, पौधों से मिलते हैं। नेक्स्ट जो है, एक और भी इसका डिफरेंस याद रखें कि फैट्स जो हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जैसा नेक्स्ट बताया कि लिपिड्स बनते कैसे हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की केमिकल कॉम्बिनेशन से। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आपस में केमिकली जब मिलते हैं तो इससे लिपिड्स बनते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं इनका फर्क होता है फैट्स और ऑयल्स के अंदर। फैट्स में जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, जबकि ऑयल्स के जो फैटी एसिड्स हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये 3 डिफरेंसेस हुए फैट्स और ऑयल्स के। बटर, क्रीम, कॉर्न ऑयल, घी, ये आपको एग्जांपल्स लिपिड्स की दी गई हैं। बटर मक्खन होता है, क्रीम ये मलाई वगैरह हो गई, दूध से जो मिलती है। कॉर्न ऑयल मकई का तेल। कॉर्न जो है मकई की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उनके लिए कॉर्न का वर्ड यूज किया जाता है। और जो क्रॉप्स की बात करते हैं हम मेज की, तो वहां पे मेज वर्ड यूज होता है। ठीक है, जब क्रॉप्स की बात हो तो मेज यूज करेंगे,
जब फूड प्रोडक्ट्स की बात होगी तो हम कॉर्न यूज करेंगे। कॉर्न और मेज इज द सेम थिंग। ये आपको लिपिड्स की एग्जांपल्स दी गई। फैट्स का बताया कि यूज क्या है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट्स हमारी बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की निस्बत फैट्स जो हैं वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। इसके अलावा बताया कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी को वो भी फैट्स के जरिए मिलते हैं। ऐसे विटामिन जो फैट्स में हल होते हैं वो भी फैट्स के जरिए हमारी बॉडी को प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट इनका फंक्शन बताया कि ये अकोमुलेट होते हैं बिलो द स्किन। एडिपोज टिश्यूज होते हैं स्किन के नीचे, तो ये उनके अंदर फैट्स अकोमुलेट हो जाते हैं। और रोल क्या होता है, दे कंजर्व द बॉडी हीट। ये इंसुलेशन का काम करते हैं, बॉडी की हीट को कंजर्व करते हैं। हमारे जिस्म की हीट जो है वो महफूज रहती है सर्दियों के मौसम में खास तौर पे जो है। इन एडिशन दे आल्सो प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव से ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लिवर, किडनी, तो मैकेनिकल इंजरीज से इन ऑर्गन्स को बचाते हैं। वो कैसे कि ये फैट्स इन ऑर्गन्स के बाहर एक कुशनिंग सी कवरिंग बनाते हैं, तो एक कुशनिंग सपोर्ट मिलती है इन बॉडी ऑर्गन्स को फैट्स के जरिए। ये आपको पिक्टोरियली जो है कुछ फूड कंपोनेंट्स का बताया गया, जैसे कि ये प्रोटीन्स का शो किया गया है फिश वगैरह में। विटामिन्स हैं उसके लिए डिफरेंट फ्रूट शो किए गए हैं। मिनरल सॉल्ट्स का शो किया है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। इनके सोर्सेज थोड़े से जो है पिक्चर्स की फॉर्म में आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। आफ्टर वाटर बताया कि प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट हैं ऑफ ऑल द केमिकल सब्सटेंसेस इन द बॉडी। कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनमें पानी सबसे ज्यादा अबंडेंट है, कसरत से पाया जाता है। और पानी के बाद दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स आती हैं। मसल्स, टिश्यूज और ब्लड जो है ये सारे प्रोटीन से बने हैं। इनका काम क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनके बॉडी में। बताया कि दे परफॉर्म सच इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी विच वुड अदरवाइज बी इम्पॉसिबल टू अकर। मीन्स कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं कि अगर प्रोटीन्स ना होती तो वो फंक्शंस परफॉर्म ना हो सकते। आगे बताया कि ये प्रोटीन्स बनी किससे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं उनसे ये बनी हुई हैं बाय कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। के अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशंस होती हैं आपस में, जिससे कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये अमाइनो एसिड्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के। यानी सारी प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, अमाइनो एसिड से। जैसा पीछे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का देखा कि सिंपल शुगर्स होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं। फैट्स में हमने या लिपिड्स में देखा फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स होते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स। तो प्रोटीन के केस में जो सिंपल कंपोनेंट्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। और ये अमाइनो एसिड याद रखें कि 20 किस्म के 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, जिनसे कि ये सारी जो बॉडी की प्रोटीन्स हैं हमारी, ये 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे बनती हैं। वैसे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उनकी किस्में और भी बहुत हैं, लेकिन 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स विच आर फाउंड इन अवर बॉडी उनको ये बनाते हैं। आगे इनके सोर्सेस का बताया गया कि प्रोटीन्स हमें मिलती कहाँ से हैं। बताया कि ये पौधों से भी मिलती हैं और जानवरों से भी मिलती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स बोथ आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। मिल्क को देखें, दूध जो है, एग्स यानी अंडे हैं, मीट गोश्त हो गया, फिश मछली है, ये एनिमल सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। जबकि पौधों से जो हमें प्रोटीन्स मिलती हैं, तो प्लांट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, वीट यानी गंदम है, बीन्स लोबिया होता है, पल्सेस ये दालें जो हैं मुख्तलिफ वगैरह, ये बोटेनिकल सोर्सेज हैं। बोटेनिकल सोर्सेज मीन पौधों से जो है प्रोटीन्स हासिल होती हैं।
तो पौधों के सोर्सेज हम कह सकते हैं इनको। प्रोटीन्स का बताया कि ये एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करती हैं टू कैटालाइज वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। कैटालाइज करना, बतौर कैटालिस्ट काम करना। हमारी बॉडी में होने वाले मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं ये एंजाइम्स जो हैं वो कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं, और वो एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं। कैटालिस्ट का याद रखें कि कैटालिस्ट उस सब्सटेंस को कहा जाता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, लेकिन खुद खर्च ना हो। खुद जो है वो एंड पे एज सच ही रहे और रीयूज हो सके। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे इन्वॉल्व हो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, लेकिन जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो एंजाइम हमारे पास या कैटालिस्ट जो है वो एज सच मौजूद होता है, वो बार बार यूज हो सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस को कैटालिस्ट कहा जाता है। अब जो एंजाइम्स हैं ये बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर ये कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। और हमने देखा कि ये एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन्स के। तो ये प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। नेक्स्ट, प्रोटीन जो हैं ये हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करते हैं। हार्मोन्स असल में प्रोटीन के बने हुए सब्सटेंसेस हैं जिनके जरिए बॉडी के अंदर जो डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के होती हैं फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इन फंक्शंस की कोऑर्डिनेशन हार्मोनल सिस्टम के जरिए होती है। और हार्मोनल सिस्टम जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, हम पढ़ेंगे बाद में। एंडोक्राइन सिस्टम जो है जिसके जरिए हार्मोनल कोऑर्डिनेशन मेंटेन की जाती है, तो उसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी में मौजूद डिफरेंट ग्लैंड्स इनको प्रोड्यूस करती हैं और वहां से ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं। फिर इनकी जो टारगेट साइट्स होती हैं, टारगेट साइट्स में इनकी बॉडी के वो ऑर्गन्स जिनको इन्होंने स्टिमुलेट करना होता है, जिनके फंक्शंस को इन हार्मोन्स ने कंट्रोल करना होता है, तो ये हार्मोन्स जब उन ऑर्गन्स तक ब्लड के जरिए पहुंचते हैं तो उनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, स्पीड अप करना है, स्लो करना है, तो ये इन हार्मोन्स का काम होता है। तो ये हार्मोन किसके बने? प्रोटीन के। तो आफ्टर एंजाइम ये सेकंड हार्मोन के तौर पे प्रोटीन का काम इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बताया कि दे डिफेंड बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो हैं ये भी प्रोटीन्स हैं। और ये एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जैसा नेक्स्ट बताया, दे इंड्यूस एन इम्यून रेस्पॉन्स कि if certain foreign particle gets entry into our bodies, for example viruses there, bacteria etc, बैक्टीरिया हूं या वायरसेस हूं, हमारी बॉडी में जब इनकी एंट्री होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फौरन स्टिमुलेट हो जाता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ये एंटीबॉडीज उन इन्वेडर्स को, जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीजेस कॉज कर सकते थे, तो ये एंटीबॉडीज उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एंटीबॉडीज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके अपना काम करता है, बॉडी को डिफेंड करता है। और ये एंटीबॉडीज किसके बने हैं? प्रोटीन्स के। नेक्स्ट बताया कि इनका रोल प्रोटीन्स का जो है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। हमारी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुख्तलिफ किस्म के जो मटेरियल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए होती है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन देखें, ये एक प्रोटीन है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स से पूरी बॉडी में, ऑल बॉडी सेल्स तक लंग्स से जो ऑक्सीजन जाती है वो हीमोग्लोबिन के जरिए जाती है। कि ब्लड जब लंग्स में से पास होकर सेल्स की तरफ जाता है तो एट द लेवल ऑफ लंग्स ब्लड के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है ये लंग्स से
एंड ब्लड में एंटर होने वाली ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेती है, और जब ब्लड सेल्स तक पहुंचता है तो सेल्स में चूंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो हीमोग्लोबिन के साथ मौजूद ऑक्सीजन वहां रिलीज हो जाती है और सेल्स उसको इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडेशन, क्रॉप की ऑक्सीडेशन करने में, जिसके दौरान के आगे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये प्रोटीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं आपको बताए गए हैं। मैं इनको रिपीट कर दूं कि बतौर कैटालिस्ट एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं जो बतौर कैटालिस्ट यूज होते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में। दूसरा फंक्शन हार्मोन्स के तौर पे बताया गया। हार्मोन जो बॉडी का केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, तो वो हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तीसरे नंबर पे आपको एंटीबॉडीज का बताया गया कि एंटीबॉडीज जो हैं जो इम्यून सिस्टम के वेपन्स हैं एक तरह से, कि इम्यून सिस्टम अगर बॉडी को डिफेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो एंटीबॉडीज के जरिए डिफेंड करता है, और ये एंटीबॉडीज प्रोटीन के बने हुए हैं। चौथा फंक्शन आपको मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन का बताया गया जिसमें हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल है। इसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स का बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं which are needed in very small amounts in our bodies, in fractions, बहुत ही कम मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं। और ये एक्ट कैसे करते हैं? कोएंजाइम्स के तौर पे इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में होने वाले जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें कोएंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। अब कोएंजाइम क्या होता है? जैसा पहले एंजाइम का पढ़ा, एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं कि जो बॉडी में अपना वर्क उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक उनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे कोएंजाइम कहा जाता है ये उनके साथ शामिल ना हो। तो ये कोएंजाइम्स एंजाइम्स की हेल्प करते हैं इन कैटालाइजिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं जबकि कोएंजाइम्स नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, और ये विटामिन्स हैं। विटामिन्स जो हैं ये कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं, और चूंकि एंजाइम जो होते हैं वो बार बार यूज हो सकते हैं तो बहुत थोड़ी मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं। यही वजह है कि विटामिन्स भी थोड़ी मिकदार में ही हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। बताया कि बॉडी कैन नॉट ग्रो नॉर्मली इफ दे आर नॉट टेकन इन रेगुलरली। अगर बाकायदगी से हम विटामिन इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी बॉडी जो है इसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो सकती। विटामिन्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं, और दूसरी कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स को देखते हैं जिसमें विटामिन ए को दिया गया। पहले बताया कि ये मोस्ट अबंडेंस में पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे स्पिनच वगैरह है। बताया कि ये लार्ज कंसंट्रेशन में मौजूद है किसमें? कैरेट में, स्पिनच में, पी, कैबेज, टमाटोज। कैरेट जो है वो गाजर है, स्पिनच पालक, पी जो है वो मटर को कहते हैं, कैबेज बंद गोभी होता है, और टमाटोज जो है वो टमाटर हैं। तो इनके अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए। इन एडिशन बताया कि इसके अलावा जो है इट्स आल्सो प्रेजेंट इन वीट, कॉर्न, क्रीम, बटर, कॉड लिवर ऑयल एंड लिवर ऑफ अदर एनिमल्स। ये इसके मोर जो है वो सोर्सेज बताया कि विटामिन ए के वीट यानी गंदम में पाया जाता है, कॉर्न ये मकई हो गई, इसके अलावा क्रीम जो हमें दूध से मिलेगी, बटर मक्खन है, कॉड लिवर ऑयल कॉड फिश होती है तो कॉड लिवर ऑयल जो कि कॉड के लिवर से मिलेगा, और लिवर ऑफ अदर एनिमल्स जो है तो उनके अंदर ये पाया जाता है विटामिन ए। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी ग्रोथ। सेलुलर मेटाबॉलिज्म मीन सेल्स के अंदर होने वाला मेटाबॉलिक प्रोसेस। सेल के अंदर होने वाले जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं
बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये उनको कंट्रोल करता है और बॉडी की ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करता है। अब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? इट रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी डिजीज होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं कि रात को कम नजर आना। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या है? रात को कम नजर आना। The patients suffering from this disease are unable to see at night। कि जिन पेशेंट्स को ये बीमारी होती है वो रात को देख नहीं सकते, उनके जो रॉड्स होते हैं वो स्टिमुलेट नहीं होते, काम नहीं करते। इट्स डेफिशिएंसी आल्सो रिटार्ड्स द ग्रोथ इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में ग्रोथ अफेक्ट होती है। इट मे आल्सो कॉज वेरियस स्किन एंड डेंटल डिजीजेस। मुख्तलिफ किस्म की ये जिल्द की बीमारियां और डेंटल डिजीजेस जो हैं, दांतों की बीमारियां, वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती हैं। उसके बाद है विटामिन डी। सन का बताया कि दैट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ दिस विटामिन। सस्ता तरीन सोर्स जिसके ऊपर हमारी कोई कीमत नहीं आती। विटामिन डी जो है उसका सोर्स है। ह्यूमन स्किन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। और याद रखें कि ये सूरज की शॉएं जो सुबह के टाइम होती हैं, मॉर्निंग के टाइम जो होती हैं, सूरज तुलू होने से पहले या तुलू होने के कुछ देर बाद तक जो होती हैं, तो ये उस वक्त जिनके आप यूं समझ लें कि सूरज की वो शॉएं जो हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, जो जो हमें अच्छी लग रही होती हैं, तो वो इसीलिए अच्छी लग रही होती हैं क्योंकि स्किन के अंदर विटामिन डी बन रहा होता है। तेज धूप में ऐसे जो कि प्रोसेस नहीं होता, यही वजह है कि वो तेज धूप जो है हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। इन एडिशन बताया कि इट मे आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, क्रीम, एग योक, अंडे की जर्दी जो है, ये भी इसके सोर्सेस हैं विटामिन डी के। प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ दिस विटामिन इन अवर डेली डाइट बताया प्रमोट्स द बोन फॉर्मेशन एंड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी। कि अगर प्रॉपर अमाउंट में हमारे डेली की डाइट में ये विटामिन मौजूद है तो हड्डियों की जो फॉर्मेशन है ये प्रमोट होती है, यानी हड्डियां जो हैं वो अच्छी बनती हैं और ग्रोथ बेहतर होती है, और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो होती है बॉडी में वो ज्यादा होती है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट होता है? इट रिजल्ट्स इन सॉफ्टनिंग, वीकनिंग एंड डीफॉर्मिंग ऑफ बोन्स। हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और डीफॉर्मिंग ऑफ बोन्स मीन हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है। बताया कि इसकी डेफिशिएंसी अगर चाइल्डहुड में होती है, बच्चों के अंदर होती है, तो इट कॉजेज रिकेट्स। रिकेट्स की डिजीज होगी। अब रिकेट्स की डिजीज में क्या होता है? बोर्ड बोन्स, हड्डियां जो हैं वो बेंड कर जाती हैं, हड्डियों में ग्रोथ नहीं होती, कमजोर रह जाती हैं, साइज भी उनका जो है वो कम रह जाता है, थिन होती हैं, और फिर वो वजन की वजह से बेंड भी हो जाती हैं। रिकेट्स की डिजीज ये कहलाती है। जबकि एडल्टहुड में क्या होता है? बड़ों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया जो डिजीज है, ऑस्टियोमलेशिया, ये भी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स है। इसमें डीफॉर्मेशन भी बोन्स की हो जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, इवन के बोन फ्रैक्चर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। माइनर फॉल रिजल्ट इन ब्रोकन बोन्स, के बड़ों में खासतौर पे बुढ़ापे में जो है कि माइनर से फॉल से गिरने से क्या होता है कि हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया ये डिजीज है जो बड़ों में होती है। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई का बताया कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, वीट एंड एग। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो बीज हैं उनमें होती है और विटामिन ई होता है। वीट, गंदम में, एग्स। अब बीज देख लें, गंदम के भी ये बीज ही होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। बाकी वेजिटेबल्स में कई ऐसे वेजिटेबल्स जिनके सीड्स ही हैं, जैसे मटर वगैरह है। तो इसी तरह और भी जो है सीड्स, उनके अंदर ये विटामिन पाया जाता है।
It can also be obtained from green leafy vegetables. सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। इसके सोर्सेज बताए गए विटामिन के। देखिए कोई भी विटामिन है तो उसके एक तो आपको सोर्सेज बताए जा रहे हैं, दूसरे उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीजेस पैदा होती हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं डेफिशिएंसी के, वो बताए जा रहे हैं। दो चीजें बताई जाती हैं आपको। बताया कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इन द ब्लड जो है इट लीड्स टू सीरियस मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर्स। मसल्स की और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, आसाबी निजाम जो है, इसकी खराबियां पैदा होती हैं, डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, खराबियां पैदा होती हैं। इट्स डेफिशिएंसी मे आल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है। इनफर्टिलिटी कहते हैं बच्चे पैदा करने की सलाहियत ना रहना, फीमेल के अंदर जो है बच्चे पैदा करने की सलाहियत का ना रहना, इनफर्टिलिटी, ये भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट है विटामिन के। इसके सोर्सेज का बताया स्पिनच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसका सोर्स है। इट्स आल्सो फाउंड इन मीट in small quantities. This vitamin is helpful in blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है इस विटामिन का। खून के जमने में कि कहीं जख्म वगैरह जब हो जाता है तो जख्म के ऊपर जो ब्लड क्लॉट का बनना है, जैसे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो ये विटामिन के की वजह से। और अगर डेफिशिएंसी विटामिन के की हो जाती है, इट स्लोज डाउन द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, के इंजरी की सूरत में जो है ब्लीडिंग में कंटिन्यू, क्योंकि जल्दी जो है वो ना ब्लड क्लॉट बनेगा और ना ही जो ब्लीडिंग स्टॉप होगी। दैट मे बी डेंजरस। ये फैट सॉल्युबल विटामिन थे। अब इसके बाद है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी है। दैट्स द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। That's why it's known as B complex, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें बहुत ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स आते हैं। इसमें देखें विटामिन B1, B2, B6, B12, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो कंपाउंड्स हैं। विटामिन B1 सोर्सेज का बताया कि ये हमें वीट से हासिल होता है एंड इट्स आल्सो प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स, सब्जियों के अंदर। इसके अलावा आमंड यानी बादाम के अंदर होता है। पिस्ताशियो, पिस्ताशियो इसका तलफ़ुज़ क्या है? पिस्ताशियो, ये पिस्ता को कहते हैं। ये सोर्सेस हो गए इसके विटामिन B1 के। अब इसकी डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? बताया कि डाइट में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो इससे मसल्स की वीकनेस होती है। जैसे कि जो बीमारी है बेरी बेरी की डिजीज, ये कॉज होगी। बेरी बेरी की जो बीमारी है जो कि मसल्स की वीकनेस होती है, पट्ठों की कमजोरी है, कमजोरी हो जाती है इस बीमारी में, तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद है विटामिन B2। सोर्सेज में है कि ये हम ऐसी डाइट्स में ये होता है विच आर फुल ऑफ क्रीम, बटर, एग्स एंड मिल्क। हमारी खुराक में अगर ये चीज़ें हैं, ये फैट्स हैं, चिकनाइयाँ हैं मुख्तलिफ, तो ये अगर खुराक में मौजूद हो तो उनके अंदर ये विटामिन B2 होता है। अदर देन दिस जो है ये लिवर में पाया जाता है, यानी कि आप जिसे कलेजी हम आम कहते हैं, तो कलेजी में होता है, हार्ट, दिल में, और किडनीज जो हैं लार्ज क्वांटिटीज में इन ऑर्गन्स में पाया जाता है विटामिन B2। इट्स आल्सो फाउंड इन मीट एंड व्हीट, ये गोश्त में और व्हीट यानी गंदम के अंदर जो है इसमें पाया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो इससे क्या होगा? ब्लड की कमी हो जाएगी, और इस ब्लड की कमी की वजह से क्या होगा? डिजीज काज होगी, दैट इज कॉल्ड परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया जो है इसे, परनीशियस का मतलब होता है डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल, नुकसानदेह, उर्दू में जिसे हम कह सकते हैं परनीशियस एनीमिया।
इसमें रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये परनीशियस एनीमिया जो है ये मेनली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। ये आपके यहाँ जो है ये B2 विटामिन जो है उसकी डेफिशिएंसी की सूरत में मेंशन्ड है बुक में, लेकिन विटामिन B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट बताया कि दिस विटामिन इज आल्सो नीडेड फॉर बेटर डाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है या सभी जो निज़ाम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और डाइजेशन जो है उसकी बेहतरी के लिए भी ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। इट आल्सो हेल्प्स टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है, उसकी सिंथेसिस में उसके बनने में भी ये हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी जो बच्चों के अंदर अगर होती है तो बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट होती है। उसके बाद विटामिन B12 सोर्सेस का बताया कि ये मिल्क, एग्स और लिवर से हासिल होता है, यानी कलेजी में होता है। ये इसके सोर्सेस हैं। इसकी डेफिशिएंसी का डिसऑर्डर आपको यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन ये याद रखें कि जो परनीशियस एनीमिया है वो विटामिन 12 की डेफिशिएंसी से होता है। परनीशियस एनीमिया यानी जिसमें रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और ये बहुत नुकसानदेह बीमारी है। नेक्स्ट है विटामिन C। It can be obtained from fresh citrus fruits like oranges, grapefruit, lemon. ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, तुष जो फ्रूट होते हैं यानी कि खट्टे जिन्हें हम कह सकते हैं तुर्शी वाले, जैसे ऑरेंजेस हैं, ये ग्रेप फ्रूट, ये चकोतरा जो होता है, या लेमन है, तो ये उनके अंदर पाया जाता है। In addition, it can also be obtained from banana, guava and other fruits. ये फ्रूट्स का बताया गया, बनाना यानी केला है, गावा यानी अमरूद है, या दूसरे जो फ्रूट्स हैं उनसे भी ये हासिल होता है। And it's also found in tomatoes and other vegetables. टमाटर या जो दूसरी सब्जियां हैं ये उनमें भी पाया जाता है। विटामिन C deficiency leads to a disease known as scurvy. विटामिन C की डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से स्कर्वी की डिजीज होती है। ये स्कर्वी की जो डिजीज है ये क्या होती है? मसूड़ों से ब्लीडिंग का होना, मसूड़ों से खून बहना, ये डिजीज स्कर्वी कहलाती है। और किस वजह से? विटामिन C की कमी की वजह से। तो हर विटामिन के केस में आपने देखा कि आपको उसके सोर्सेस बताए गए हैं और उसकी डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये कोशिश करेंगे कि हर विटामिन के सोर्सेज जितने वो ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं वो याद करें, और उनके जो डिसऑर्डर्स हैं वो आगे याद रखें। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा डिटेल जो नहीं कर सकते, तो कम से कम हर जो स्टूडेंट हैं वो दो सोर्सेज तो कम से कम इनके याद कर लें, और उनके जो डिसऑर्डर्स हैं अगर वो ज़्यादा डिसऑर्डर लिखें तो कम से कम 1-2 डिसऑर्डर जो हैं वो कर लें, ताकि हर विटामिन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ हद तक होती जाए। लेकिन कोशिश आप ये करें कि जितना मटेरियल आपकी बुक में गिवन है, ये सारा मटेरियल आपको जो है वो ज़हन नशीं होना चाहिए कि कम से कम इतना मटेरियल आप ज़रूर क्वेश्चन के आंसर में दें। नेक्स्ट है मिनरल सॉल्ट्स। इन एडिशन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा हमारी बॉडी जो है इट आल्सो रिक्वायर्स सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रिक्वायर्ड है। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमें कहां से मिलते हैं? मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स, मादनियात, जिन्हें हम उर्दू में मेंशन करते हैं। And these are present in our food. They include calcium, iron, iodine, fluorine, magnesium, and phosphorus. These are inorganic substances, and they perform a number of important functions in our body. हमारे जिस्म में बहुत important functions हैं जो कि ये minerals perform करते हैं। कुछ functions आपको ये यहाँ पे बताए गए हैं, मिनरल्स का बताया गया, और हर एक आगे जो है वो फंक्शन बताया गया।
مثلا कैल्शियम को देखें, कैल्शियम जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में। पहला फंक्शन था ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग अगेन मैंने बताया पहले भी, जैसे कि जब इंजरी वगैरह होती है तो वहां जख्म हो जाए तो जख्म के ऊपर ब्लड का क्लॉट बनता है और फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग है। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस जो कि ब्रेन के मैसेजेस होते हैं पूरी बॉडी में, तो उनकी ट्रांसमिशन में यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को देखें, मसल्स का कंट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना। और बोन्स की फॉर्मेशन में ये कैल्शियम वाइटल रोल प्ले करती है। आप देखें कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो ये जितने प्रोसेसेस हैं ये सारे इफेक्ट होंगे। नंबर 2, आयरन। आयरन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। लंग्स से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में, बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचाती है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए आयरन की तो अनीमिया की डिजीज काज होगी, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी की सूरत में क्या होगा? हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, और जब हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, अनीमिया की डिजीज काज होगी। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन जो है हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करती है, और थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। अगर डेफिशिएंसी आयोडीन की हो जाती है तो इससे गाइटर की डिजीज काज होती है। गाइटर कहते हैं ये थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है। थायराइड ग्लैंड जो है उसका स्वेल कर जाना, जिसे गले पड़ जाना कहते हैं कि गले पड़ गए हैं, ये इसमें थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है ओवर वर्किंग की वजह से, कि हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, उस ग्लैंड की ओवर वर्किंग होती है जिससे उसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड आल्सो रिटार्ड्स मेंटल ग्रोथ, जहनी ग्रोथ जो है वो नहीं होती। मतलब बच्चों के अंदर जो है मेंटल ग्रोथ अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटाशियम। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्स का जनरेट होना यानी इसका पैदा होना, फिर इसका जो है वो ट्रेवल करना, इसमें सोडियम और पोटाशियम आयंस का रोल होता है। सोडियम एंड क्लोराइड दे कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, सोडियम आयंस या क्लोराइड आयंस जो हैं बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोराइड्स। ये एसेंशियल है फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ टीथ। दांतों की बेहतर जो है वो डेवलपमेंट के लिए ये फ्लोराइड्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। फ्लोराइड्स के डेफिशिएंसी की सूरत में टूथ डिके अकर्स, दांत जो हैं वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है फूड एंड एनर्जी। एनर्जी का बताया कि इट इज नीडेड टू मेंटेन आवर डेली एक्टिविटीज। हमारी रोजमर्रा के जितनी भी एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट फंक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं, उनके लिए एनर्जी का होना जरूरी है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, टू कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फॉर एनहांसिंग ग्रोथ, यानी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी खुराक से। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड जो हैं, जैसे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब ये सब्सटेंसेस जो हैं सेल्स तक पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन के जरिए इनकी ब्रेकडाउन होती है, इसके दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैं प्रोडक्ट्स भी साथ ही बता देता हूं आपको कि ऑक्सीजन के जरिए अगर कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर फैट्स की ब्रेकडाउन हुई है तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्रोटीन्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ अमोनिया भी बनता है, और आगे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये अमोनिया है जिससे के बाद में यूरिया बनेगा लिवर के अंदर, और वही यूरिया है जिसको किडनीज ने फिल्टर करना होता है यूरिन की फॉर्म में, जिस्म से खारिज करना होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। एनर्जी जो हासिल होती है खुराक से,
इसको कैलोरीज में मेजर किया जाता है। कैलोरी जो है वो एनर्जी का यूनिट है। जैसा मैस को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो एनर्जी को कैलोरीज में मेंशन किया जाता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो खुराक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह, तो इनमें एनर्जी कंटेंट्स जो हैं वो कैसे होते हैं। डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स में बताया कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि बॉडी को मिलती है। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है इट गिव्स 4.1 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जबकि सेम अमाउंट फैट्स की अगर हो तो अप्रोक्सीमेटली डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, यानी कि 9.3 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी 1 ग्राम फैट्स से। तो याद रखें कि फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स के निस्बत डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट फूड सोर्सेज दे गिव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। ये आगे आपको टेबल 4.1 के अंदर जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि वेरियस फूड आइटम्स में प्रेजेंट होती है ये आपको शो की गई है। जैसे कि देखें राइस के अंदर 348 जो है वो किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद है पर 100 ग्राम। ये एनर्जी आपको पर 100 ग्राम दी हुई है। वेट के अंदर 348 किलो कैलोरीज एनर्जी होगी पर 100 ग्राम। पी के अंदर 109 किलो कैलोरीज। पोटैटो के अंदर 99, ठीक है, पोटैटो के अंदर 99 किलो कैलोरीज एनर्जी है। ब्रिंजल, ये बैंगन को कहते हैं, तो बैंगन जो है वो उसमें 5 किलो कैलोरीज होती हैं पर 100 ग्राम। ककम्बर, ये ककड़ी या खीरा जिसे कहते हैं, तो इसमें 14 किलो कैलोरीज एनर्जी है पर 100 ग्राम। बनाना, केला जो है इसमें 153 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम एनर्जी होती है। ड्राई फ्रूट्स 655 से लेकर 549, इस रेंज में जो है इतने किलो कैलोरीज जो है पर 100 ग्राम एनर्जी होती है। काओ मिल्क जो है इसमें 65 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम और बफलो मिल्क में 117 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम जो है मिल्क ये एनर्जी होती है। एग्स के अंदर 180 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम और मीट में 194 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम जो है वो एनर्जी होती है। मीन के अगर 100 ग्राम मीट हो तो उसमें 194 किलो कैलोरीज है वो एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी को मिलती है। तो ये एनर्जी कंटेंट्स आपको बताए गए जो डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस ये बताया जा रहा है। इसमें चिल्ड्रन का बताया एज ईयर्स में दी हुई है। 1 to 3 ये 1 से 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है 1200 और 4 to 6 ईयर्स के जो उनकी है 1600 कैलोरीज। तो ये याद रखें ये पर डे जो है वो एनर्जी दी हुई है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट दी हुई है। 7 to 9 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको 2000 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी चाहिए। 10 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको 2500 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। अब मेन और वीमन को देखें तो बताया कि वीमन हु डू नॉट वर्क, वो औरतें जो काम नहीं करती ज्यादा, तो उनको कितनी चाहिए 2090 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। और वीमन डूइंग हार्ड वर्क, जो ज्यादा काम करने वाली हैं औरतें, उनको 3000 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। मैन हु डू नॉट वर्क, मर्द जो के काम नहीं करते ज्यादा, तो उनको 3400 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। मैन डूइंग हार्ड वर्क, जो ज्यादा काम करने वाले हैं मर्द, तो उन्हें 4500 जो है किलो कैलोरीज एनर्जी ये रिक्वायर्ड होती है पर डे। मतलब कि एनर्जी नीड्स ऑफ ए मैन जो है दे डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। कई फैक्टर्स हैं जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं दे आर रेट ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म, बॉडी वेट, सेक्स, एज,
क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है। बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म जो है ये उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को कहते हैं जो कि एट रेस्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। बेसल मेटाबॉलिज्म मीन कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू मीट द demand of body functions which are being performed at rest। कि बिल्कुल रेस्ट की हालत में हमारी बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाता है बेसल मेटाबॉलिज्म। कि जैसे वर्किंग ज्यादा होगी तो लाजिम बात है एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। तो बेसल मेटाबॉलिज्म में हमने देखना है कि किसी पर्सन की कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है, सेक्स यानी मेल है या फीमेल है उसके लिहाज से वेरिएशन आती है। एज, डिफरेंट एजेस में जो है वो पर्सन्स को डिफरेंट अमाउंट्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसी तरह से कि अगर सर्द इलाके हैं तो वहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, गर्म इलाकों में उसकी निस्बत कम होती है। फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन का पता है, ये वर्किंग है, फंक्शंस के कोई बंदा जो वो ज्यादा वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, या कोई थोड़ा जो है वो वर्क करता है तो उस लिहाज से उसकी एनर्जी की डिमांड होगी। चिल्ड्रन बताया कि दे नीड मोर एनर्जी देन एडल्ट्स और ओल्ड पीपल। बड़ों के निस्बत या बूढ़ों के निस्बत बच्चों को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओल्ड पीपल नीड एनर्जी ओनली फॉर मेंटेनेंस। जो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए तो देखें मेंटेनेंस है, ये रिपेयर है बॉडी की, तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए। दो काम, रिपेयर और मेंटेनेंस। जबकि जो बच्चे हैं इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए नहीं बल्कि इनको रैपिड ग्रोथ के लिए भी होती है एंड टू कोप द चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कहते हैं बलूगत का, बालिग होना। तो बलूगत के दौरान बच्चों के अंदर क्या मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो है, तो इसके लिए जो है वो इन्हें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इनको बोला जाता है। कुछ बॉडी के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है, इसलिए बच्चों को इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दे हैव हायर मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ रेट्स देन ओल्ड पीपल। बूढ़ों की निस्बत या बड़ों की निस्बत बच्चों के अंदर मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होती है और ग्रोथ भी ज्यादा हो रही होती है। दैट्स वाई के दे नीड मोर एनर्जी पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट। बॉडी वेट जैसे ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बॉडी वेट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने बताया कि दे नीड मोर एनर्जी देन वीमेन। मर्दों को औरतों की निस्बत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ये रीजन इसकी जो है वो मोर एक्टिव होना होता है, मसल्स का ज्यादा वर्किंग की सूरत है। Similarly, men who are actively engaged in physical hard work, they need more energy than those who are not involved in physical labor। कि वो आदमी जो ज्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू अदर मेन जो कि लेस फिजिकल लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, ये काम नहीं करते। नेक्स्ट बताया कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मेन जो वेमन जो हैं, pregnant and lactating women, they need more energy than their normal counterparts। कि वो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं यानी हामला होती हैं, जिनके पेट में बच्चा हो, या लैक्टेटिंग वेमन मीन वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाने वाली होती हैं, तो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है देन देयर नॉर्मल काउंटरपार्ट्स। मीन कि अगर जो इस कंडीशन में नहीं होंगी अगर औरतें, तो उनकी निस्बत उनको इन औरतों को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दे रिक्वायर एनर्जी नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट आल्सो फॉर देयर डेवलपिंग बेबीज। कि इन औरतों को डबल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक तो उनकी अपनी बॉडी की एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस के लिए, और दूसरा जो उनके जो बेबीज, उनके बेबीज की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है।
People living in hot climate need less energy to maintain their body temperature than those living in colder regions of the world. इससे मैंने पहले भी बताया कि जो सर्द इलाकों में रहते हैं लोग, वहाँ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनको इस कदर नहीं चाहिए. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स का जो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस कांस्टेंट टेम्परेचर इन कोल्ड क्लाइमेट्स और इन कोल्डर मंथ्स ऑफ द ईयर. सर्दियों का मौसम है तो उसके दौरान बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू हॉट सीजन. गर्मियों के मौसम में थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट है वो बैलेंस्ड डाइट का बताया गया कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है. डाइटिटिक्स का बताया कि दे ऑलवेज एम्फसाइज टू यूज अ बैलेंस्ड डाइट. डाइटेटिक्स कहते हैं डाइट का इल्म रखने वाले जो न्यूट्रिशन है, डाइट जो है, कौन सी डाइट किस पर्सन के लिए जो है वो यूजफुल है, कैसी डाइट होनी चाहिए, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो ये चीज़ें जैसा इल्म रखने वाले जो हैं इनको डाइटेटिक्स कहा जाता है. कहा कि दे एम्फसाइज टू यूज बैलेंस्ड डाइट. वो बैलेंस डाइट यूज करने की ताकीद करते हैं. बैलेंस डाइट क्या होती है? जो हमारी बॉडी के जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड करती है. बट मोस्ट ऑफ अस बताया कि दे आर अनअवेयर ऑफ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट. वो बैलेंस डाइट को जो है वो सही तौर पे नहीं समझते, अनअवेयर हैं, ऐसे ना वाकिफ हैं. Balanced diet बताया कि it's the one that contains well proportionate quantity of all the macro and micronutrients according to our body demands in such a way that neither any nutrient is in excess nor it's deficient. कहा कि बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें मुनासिब मिकदार में वो सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को डिमांड होती है, और इस तरह से मौजूद होते हैं कि ना तो कोई न्यूट्रिएंट जो है वो डेफिशिएंट होता है और ना ही कोई न्यूट्रिएंट जो वो ज्यादा मिकदार में होता है, यानी जरूरत से ज्यादा होता है. तो उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है. और फिर अगर डाइट बैलेंस होगी तो उसका फायदा क्या होगा? बैलेंस डाइट जो है इट मेंटेन्स आवर हेल्थ इन सच अ वे दैट वी नीदर लूज वेट नॉर बिकम ओवर वेट. ना तो हमारा वेट, बॉडी वेट कम होगा, ना हम ओवरवेट होंगे. बैलेंस डाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कैलोरिक नीड्स ऑफ अ पर्सन. जैसा पीछे बताया गया कि जितनी जैसा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट पर्संस की, तो उस लिहाज से डाइट भी वेरी करती है. वेरियस कैलोरिक नीड्स बताया कि डिपेंड ऑन द वेट, एज, सेक्स, बॉडी फिजियोलॉजी यानी बॉडी के फंक्शंस एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ दैट पर्सन, कि बंदा ज्यादा काम करने वाला है या थोड़ा काम करने वाला है, उस लिहाज से ये चीजें पहले डिस्कस हो गई पिछले टॉपिक में. अब आपको डाइट बताएगी डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए. डाइट फॉर इन्फेंट्स. इन्फेंट्स के शीरखार बच्चे, छोटे बच्चे, पैदाइशी बच्चे जो हैं. मिल्क जो है बेस्ट फूड है फॉर बेबीज, क्योंकि मिल्क के अंदर जो है ये सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. Therefore, breastfeeding is matchless. Breastfeeding जो है यानी माँ का जो दूध है बच्चे के लिए, इसका कोई इसके सानी चीज नहीं है, इसके मुकाबिल कोई और चीज नहीं है. इट्स मैचलेस कहा. बताया कि it provides not only the nutrients but also the prepared antibodies टू द इन्फेंट्स. ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स इन्फेंट्स को मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं, बल्कि एंटीबॉडीज भी मिलते हैं, एंटीबॉडीज. बट इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट पॉसिबल, कि अगर माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है अंडर सर्टन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, कुछ नागुजीर हालात की सूरत में कुछ ऐसे केसेस पैदा हो जाएं अगर कि माँ का दूध जो है वो बच्चा नहीं पी सकता, तो फिर
काऊ या बफलो का जो दूध होता है ये यूज किया जा सकता है, लेकिन जरूरी क्या होगा कि उसको हम डाइल्यूट करें बाय एडिंग 2 parts ऑफ वाटर अगेंस्ट 1 part ऑफ काऊ और बफलो मिल्क। एक हिस्सा गाय या भैंस का दूध है, उसमें 2 हिस्से पानी डालकर जो है बच्चे को पिलाया जा सकता है। दे कैन आल्सो बी सर्व्ड विद लाइट सॉलिड फूड्स जैसे सीरियल्स, एग्स, एग योक जो है ये दिया जा सकता है, या बॉइल्ड मिंस्ड मीट दिया जा सकता है, बॉयल करके मिंस्ड मीट के कीमा जो है वो दिया जा सकता है। आफ्टर 4th month ऑफ देयर लाइफ, कि 4 माह के बाद जो है ये सॉलिड फूड भी दी जा सकती है बच्चे को। इन्फेंट्स बिटवीन 6 to 18 months दे शुड बी गिवन फ्रूट्स एंड एग्स इन एडिशन टू मिल्क, के दूध के अलावा फ्रूट्स और एग्स भी दिए जाने चाहिए बच्चे को जो 6 to 18 months के ड्यूरेशन में हो। इसके बाद है डाइट फॉर यंग्स, छोटे बच्चे जो हैं, यानी शीर खारगी के पीरियड के बाद जो है अगला पीरियड बच्चों का, तो उनको कौन सी डाइट दी जानी चाहिए। पता है कि दे नीड मोर फूड एज दे आर मोर एक्टिव एंड एजाइल। बताया कि ऐसे बच्चे जो हैं इनको ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, वो मोर एक्टिव एंड एजाइल। एजाइल का मतलब है तेज, फुर्तीला जिसे कह सकते हैं, कि उसमें उनमें ज्यादा तेजी पाई जाती है। देयर डाइट शुड हैव हायर कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी फूड्स, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने चाहिए, फैट्स ज्यादा होने चाहिए उनकी खुराक में। एज द यंग बॉडी इज पासिंग थ्रू रैपिड ग्रोथ फेज, तेजी से ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की बॉडी में। दे आल्सो नीड हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए उनकी खुराक में। बैलेंस्ड डाइट शुड स्ट्रिक्टली बी एडमिनिस्ट्रेड बिटवीन द एज ऑफ 13 to 16 years, 13 से 16 साल के जो बच्चे हैं तो इनकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, खास तौर पे इसका ख्याल रखना चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दे शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर फूड, दूध और दूध की बनी हुई जो चीजें हैं ये इनकी खुराक का लाजमी हिस्सा होनी चाहिए। उसके बाद है डाइट फॉर ओल्ड, दे रिक्वायर लेस एनर्जी देन द अबव 2 categories फॉर डिमिनिशिंग फिजिकल फैकल्टीज। इनके जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इनको थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन्फेंट्स और यंग्स के निस्बत। दे शुड नॉट यूज डाइट्स विद हायर फैट कंटेंट्स, कि ज्यादा फैट्स वाली जो फूड है, फैटी फूड इन्हें नहीं यूज करनी चाहिए। इंस्टेड दे शुड यूज डाइट विद मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की पूरी मिकदार, दरमियाना सी मिकदार हो जिसमें, वो यूज करनी चाहिए। मॉडरेट और ATE होता है, स्पेलिंग मिस्टेक, E नहीं A होना चाहिए, यानी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम मिकदार जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए उनकी खुराक में, बल्कि के दरमियानी मिकदार। अच्छा, उसके बाद डाइट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, प्रेग्नेंट यानी हामला औरतें हों या बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें जो, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। पता है कि दे नीड डबल द अमाउंट ऑफ फूड देन एन ऑर्डिनरी वुमन, एक आम औरत की निस्बत उन्हें डबल अमाउंट जो खुराक की चाहिए, एज दे हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि उनको एक तो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है एनर्जी की वो पूरी करनी है, दूसरी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, फीटस डेवलप हो रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी उन्होंने पूरी करनी होती है। इफ दे डू नॉट टेक अ वेल बैलेंस्ड डाइट, अगर बैलेंस डाइट वो नहीं लेती तो डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी में बी अफेक्टेड एंड दे विल बी बोर्न अंडरवेट, तो बच्चा जो डेवलप हो रहा होता है उसकी डेवलपमेंट अफेक्ट होगी और इवन के वो बच्चा जो है वो अंडरवेट पैदा होगा, कि कमजोर बच्चा पैदा होगा। द प्रेग्नेंट वुमेन शुड देयरफॉर टेक अ बैलेंस्ड डाइट विद हाई प्रोटीन प्रोफाइल, विटामिन्स एंड मिनरल्स। पता है कि जो हामला औरतें हैं इन्हें वेल बैलेंस्ड डाइट यूज करनी चाहिए, जिसमें क्या हो हाई प्रोटीन प्रोफाइल, कि प्रोटीन कंटेंट्स जो हैं, प्रोफाइल के होते हैं मुख्तलिफ औकात में जो उन्होंने खुराक इस्तेमाल करनी है, तो उसमें प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए।
Lactating women should also use milk, sugar, fats, wheat, fruits, and eggs regarding so that they should fulfill energy demands of their breastfeeding offspring. लैक्टेटिंग विमेन जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं बताया कि उनको ये खुराक लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए खाने पीने में। ये चीज़ें दूध है, शुगर है, फैट्स हैं, वीट, फ्रूट्स या एग्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए ताकि जो बच्चा उनकी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, दूध पीने वाला है, तो उसकी जो एनर्जी की डिमांड्स हैं वो पूरी हो सके। With this, it is the end of our today's lecture. Next part of this chapter will be discussed in next lecture.